Hello guys, I'm Shoresh Gupta and I'm back with a new video on my channel Let's Maths. So as I already promised you people that I will be bringing a series of lectures which will eventually move on to relations and functions. So in my last lecture I had discussed about the introduction to sets, where I discussed about the definition of sets and the representation of sets and the different types of sets. So in today's lecture we will be talking about the different operations of sets, including the representation by Venn diagram and certain properties of power sets. Okay, this lecture is very important because as we move on to laws of sets, laws of algebra on sets, these concepts will be required by you people. So let us start the topic, that is sets, and this is the part 2. Okay, I will have one more lecture of on sets in which I will be discussing the laws of algebra. So let us start the topic. Okay. So let us revise what was power set. So what was power set? Power set was the set containing all the subsets of a particular set. Say, as I already discussed, if A is a set containing elements 1 and 2, then the power set of A will be null 1, 2 and 1. Okay? Clear guys? Okay. Now let us study about certain properties of power set. So properties of power set. Okay. First property of power set, that is, if cardinality of NA is this, then n of P is 2 to the power n, provided P is the power set of A. Okay, this I already discussed in last lecture. In the next lecture, the next point I have that PA means the power set of A. Okay, PA intersecting PB is equals to power set of A intersecting B. We will be discussing about all the operations. Basically these are called operations. These things are called operations on sets. Now just let us understand the properties, and when we will be discussing the operations on sets, these things will be more clear to you people. Then the part 3. Part 3 is that PA union of PB is a subset of P A union B, and PA union PB is not equals to P of A union B. Okay, make this very clear. What? That don't confuse the intersection. This operation is called the intersection operation, and this is called the union operation. So power set of A intersecting power set of B is equals to power set of A intersecting B, and power set of A union power set of B is a subset of power set of A union B, but power set of A union power set of B is not equals to power set of A union B. Okay, moreover, one thing you people also should know that each element of a power set is a set itself. Okay, each element of a power set is a set itself. Okay. Okay, so these were the properties of power sets, as I already told. Now we will be moving on to Venn diagram. Venn diagrams are very important. People who already know concepts of probability, I want to tell one thing, that there are certain probability problem which also require Venn diagrams to solve them. Okay, Venn diagrams make probability problem which include the set sort of problems. Okay, basically what happens is that the laws of algebra of probability are most of them are same as that of those in sets. Drawing a Venn diagram in certain problems in probability also helps you in solving the problem with quite ease.
एंड सेम थिंग गोज फॉर सेट्स टू। वेन डायग्राम का अगर कॉन्सेप्ट आप मतलब आपकी अगर वेन डायग्राम की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आप सेट्स की 99% प्रॉब्लम्स बहुत इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम बेसिकली आपकी सेट्स की जो ऑपरेशन है उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है। Venn diagrams are very important and do try to visualize Venn diagrams when I go describing each and every operation of set. Okay, so let us first introduce Venn diagram to you people. Maybe you people, some of you people may also know Venn diagram, क्योंकि हमने जब पहली बार सेट्स पढ़ा था जूनियर क्लासेस में तब भी हम लोगों ने वेन डायग्राम सीखा था। ठीक है, तब भी हम लोगों ने वेन डायग्राम सीखा था। ओके, तो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम तो वेन बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, उनका पूरा नाम मैं भूल गया। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिप्रेजेंटेशन की, वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ऑयलर ने। वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ऑयलर ने। ऑयलर इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही इज ऑफन known as the king of mathematics often. Okay, when Gauss is called the prince of mathematics, Euler is often known as the king of mathematics. Euler has given us many important theorems and many important results. Like Euler की जो आपके पास Euler की जो ये आइडेंटिटी है वो तो बहुत फेमस आइडेंटिटी है। जो Euler की जो ये आइडेंटिटी है ना, आपने शायद पढ़ी है ये आइडेंटिटी, ये तो बहुत फेमस आइडेंटिटी है Euler की। तो ऑयलर हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू मैथ्स। तो पहली बार ये रिप्रेजेंटेशन की ये कॉन्सेप्ट को ऑयलर ने इंट्रोड्यूस किया था एंड इट वाज अप्लाइड इन प्रॉब्लम्स बाय वेन। ओके, वेन एक्चुअली उनका शायद सरनेम था। ओके, तो इसको अप्लाई किया था वेन ने, पर इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था ऑयलर ने। सो ऑयलर वांटेड टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन अ सेट बाय पॉइंट्स in a closed graph or in a closed curve. ठीक है, Euler wanted to represent the elements in a set by points inside a closed curve. For example, ये जो मैंने A बोली, A contains 1 2 3, तो अगर ये एक क्लोज्ड कर्व है, ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा A एज अ सेट और इसके अंदर ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया था ऑयलर का, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया था वेन ने, डॉक्टर वेन, एज फार एज आई रिमेंबर नाउ। तो वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ते हैं। तो आप लोगों ने यूनिवर्सल सेट लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। Universal set. Now suppose the universal set contains two different sets, A and B. ठीक है, A and B, A and B. तो इस A and B को हम लोग क्लोज्ड कर्व, हम लोग बेसिकली सर्कल यूज करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन वेन डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का बना A सेट और ये हम लोग का बना B सेट। अच्छा, हम लोग ने इन दो सर्कल्स को इंटरसेक्टिंग क्यों बनाया? क्यों? ताकि हम लोग ये दिखा सके कि जनरली जब ये दोनों सेट्स एक यूनिवर्सल सेट पे बिलोंग कर रहे हैं तो देयर मे बी सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ सेट्स। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बेसिकली डिनोट करता है उन एलिमेंट्स को जो A में भी है एंड B में भी है। ठीक है, अब हम लोग ऑपरेशंस को समझते समझते वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑपरेशंस पे आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट होता है यूनियन से। यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन। नाउ अच्छा, यूनियन शब्द का मतलब क्या है? यूनियन मींस कि कमिंग टुगेदर, राइट, कमिंग टुगेदर। तो बेसिकली इफ आई से कि A यूनियन B, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन ऑपरेशन। तो A यूनियन B बेसिकली मींस एलिमेंट्स which belong to at least one of
देन मतलब ए यूनियन बी जो सेट होगा, ये जो सेट होगा, ये इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे दैट आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू बोथ. ओके, इस ये जनरलाइज्ड वे में हम लोग यूज कर सकते हैं. मतलब A1 A2 A3 ऐसे करके इसको हम लोग AN तक अप्लाई कर सकते हैं. एंड ये जो सेट बनेगा, इस सेट में क्या होगा, इस सेट में वो हर एलिमेंट होगा जो एटलीस्ट वन ऑफ देम में बिलोंग करेगा. एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स विल हैव दैट एलिमेंट और विल हैव मतलब the elements in the set represented by this particular set will include at least one element in each of the set. ठीक है. अच्छा, नाउ तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I equals to 1 to n ai. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये इक्वल. ठीक. अच्छा, तो ये बना आपका यूनियन. अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करें. अच्छा, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल भी दे देता हूं. सपोज A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 2 3 4. तो A यूनियन B क्या होएगा, तो 1 होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा. तो A के एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहां पे इंक्लूड कर दिया. अब B के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स है. तो इन दिस 2 and this 3 is no more required to be included in the set because they are already there, and as I already told, sets do not include repetition of digits. So 4. This is the set containing A union B. Okay. अच्छा, अब इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वो हम लोग जरा देख लेते हैं. ओके, तो ये बना आपका यूनिवर्सल सेट, ये बना आपका यूनिवर्सल सेट, ये बना आपका A, ये बना आपका B. Now what is A union B? This whole thing, इसको मैं रेड से भी बना सकता हूं. This whole thing, इसकी इंक सूख गई है शायद से. This whole thing is A union B. ये पूरा पार्ट इज A union B. ठीक है. अच्छा, तो इतना समझ गए, राइट. नाउ वी विल बी कमिंग टू इंटरसेक्टिंग ऑपरेशन. क्या इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो उसको जरा हम लोग समझेंगे अभी. इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा u. ठीक. अच्छा, दिस इज वेरी सिंपल. A इंटरसेक्टिंग B मींस ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट बोथ इन A एंड B. फॉर एग्जांपल जो लास्ट हम लोगों ने वहां पे लिया था ना, क्या लिया था हम लोगों ने एग्जांपल 1 2 3 एंड 2 3 4. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 3 है. तो A इंटरसेक्टिंग B कंटेन्स 2 3. ठीक है. अच्छा, ये कौन से फिगर से रिप्रेजेंटेड है, ये बना आपका A, ये बना आपका B. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. दिस पार्ट इज A इंटरसेक्टिंग B. ठीक है, बहुत सिंपल है. अच्छा, दिस इज योर इंटरसेक्टिंग ऑपरेशन. अच्छा, अब एक टर्म्स जान लो which is disjoint sets. Disjoint sets are those sets which have no element common to them. That is, A intersecting B, इसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो 0 होगी. A intersecting B has no elements. Okay? तो disjoint sets की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, डिसजॉइंट सेट्स की रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी A B, नो एलिमेंट्स कॉमन टू देम. वेरी फाइन. ओके, नाउ वन मोर थिंग कम्स, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स. फिर हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ेंगे. सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पहले डिफरेंस पढ़ लेते हैं. डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स. A is a set which is 1 2 3 and B is a set which is 2 3 4. तो A minus B set क्या होगा, A minus B set includes those elements which is present in A but not in B. Make it sure, इसको कंफ्यूज मत करना. A minus B includes those elements
which are there in A but not in B. तो यहां पे A माइनस बी सेट क्या इंक्लूड करेगा? 1, क्योंकि 1 इज देयर इन A बट नॉट इन B, सो 1. अगर B माइनस A होता तो कितना होता? 4, राइट? बिकॉज 4 इज देयर इन B बट नॉट इन A. वेरी सिंपल. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस. सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमेट्रिक डिफरेंस से क्वेश्चन आईएसआई में भी पूछे जाते हैं, जेई मेन, जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेल्टा बी या फिर ए ऐसे ओके क्या ही बोल सकते ना, ए ट्रायंगल बी, ए डेल्टा बी, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है. तो दिस इज द सिंबल. ओके, ए डेल्टा बी. ओके, so what does this represent? This represents the set A minus B union B minus A. ठीक है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके भी बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्चुअली ये और क्लियर लगे. मुझे बताओ कि ये सेट क्या मीन कर रहा है. ये सेट क्या मीन कर रहा है? गौर से देखो, A minus B set contains only those elements which belong to A but not to B, and this contains those elements which belong to B but not to A. मतलब ये पूरा सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस सेट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी बट नॉट बोथ. आइदर ए और बी बट नॉट बोथ. तो इस चीज को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, पी सॉरी ए यूनियन बी. This means this includes elements which belong to either A or B or both. अगर मैं इससे both को माइनस कर दूं तो ये मिल रहा है ना, राइट? ये सेट क्या इंक्लूड कर रहा है? ये सेट इंक्लूड कर रहा है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आइदर A और B बट नॉट बोथ. आइदर A और B बट नॉट बोथ, राइट? वेरी सिंपल. ओके, इसकी भी एक एग्जांपल करोगे क्या? बहुत इजी है, इसकी एग्जांपल बहुत इजी है. क्या होगा? ए में क्या होता है? ए में क्या होता है? 1 2 3 बताया था, मतलब कराया था एग्जांपल ऐसे ही ना. और ये 2 3 4, तो ए माइनस बी क्या होने वाला है? 1 एंड बी माइनस ए क्या होने वाला है? 4. यहां से और एक एग्जांपल बन गई. ये क्या सेट है? सिंगलटन सेट है ना. ये सिंगलटन सेट है, इसकी कार्डिनलिटी 1 है. तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 4. अब इसकी यूनियन करने से क्या होएगा? देखो 1 2 3 4 आएगा सेट में, ए यूनियन बी में, राइट? और ए इंटरसेक्टिंग बी में क्या आएगा? 2 3 आएगा. अगर दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं तो 1 4 ही बचेगा ना. सिंपल है ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है, कंसेप्चुअली इसको ऐसे डेवलप करना पड़ेगा. इसको कंसेप्चुअली ऐसे आपको डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत सिंपल है. ओके, अब कुछ और चीजें थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में. एक और चीज है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसको भी जान लेते हैं हम लोग जरा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मींस? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार, और आप ए डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज आपकी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 2 3 4 आर द एलिमेंट्स, एंड ए इज अ सेट व्हिच बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्सल सेट एंड हैज एलिमेंट्स 2 and 3. तो ए जो कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दैट इज 1 and 4. इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट्स which belongs to the universal set but not to the set itself. ठीक है, समझ गए? ओके, तो मैं कुछ प्रॉब्लम से आपको ये चीज समझ दे रहा हूं. ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम से आपको ये चीज समझ रहा हूं. लेट मी टेक अ प्रॉब्लम. ओके, सो आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. आई थिंक दिस इज अ वेरी फाइन प्रॉब्लम. मुझे एक बार देखने दो. ओके, तो ये प्रॉब्लम जरा हम लोग कर लेते हैं तो समझने में और आसानी होगी. ओके,
बोला है कि u is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a is 2 4 6 and 8, b is 2 3 5 and 7. बोला है then a union b complement, a complement intersecting b complement, a del b and अच्छा इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। लेट्स फाइंड आउट, वेरी इजी राइट। ओके, तो पहला वाला करते हैं। अच्छा ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होएगा, 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा, 6 होएगा, 7 होएगा, 8 होएगा। वाओ, सो नाइस मैन। 2 3 4 5 6 7 8, दो 2 है तो एक 2 लेंगे और इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट कितनी होगी, u माइनस दिस। तो u में सिर्फ एक ही दो एलिमेंट है 1 एंड 9 जो बिलोंग नहीं करते इस सेट में, तो 1 एंड 9, राइट, वेरी फाइन। ओके, अच्छा अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड तो ये वाला फाइंड करने से हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी मिलेगा, वो डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर यहां पे मैं उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो u माइनस ए राइट, तो 1 है, 3 है, 5 6 है, 7 है, 9, एंड b कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होने वाली है, 1 3 5 कुछ नहीं और 9। देखो दिस सेट एंड दिस सेट आर इक्वल, इसका मतलब ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्टिंग बी कॉम्प्लीमेंट। इसका इनवर्स भी ट्रू होता है, मतलब ए इंटरसेक्टिंग बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दो थ्योरम्स को कहा जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। आई विल डिस्कस दिस थ्योरम एंड अदर थ्योरम्स इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने बस ये बता दिया, ठीक है। और लास्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला क्या होने वाला है, ए डेल बी राइट। तो ए माइनस बी क्या होने वाला है, ए माइनस बी होने वाला है आपका 4 6 एंड 8, एंड बी माइनस बी आपका होने वाला है 3 5 एंड 7। तो ए डेल्टा बी क्या होने वाला है, इन दोनों का यूनियन, दैट इज 3 4 5 6 7 and 8. Okay, so this was all about today's lecture. In next lecture I will be starting with the laws of algebra on sets, moving on to certain properties of cardinality of a set, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे आपकी relations and functions पे, ठीक है। So keep supporting my videos guys, do like, share and subscribe if you like the video. I will be having my Instagram account down below in the description box. I often post any updates of my YouTube channel in my Instagram account. So keep supporting guys, thank you.